Hello and welcome in political science class. This is Sumit Kumar Suryavanshi and this is 12th class political science, and we are discussing 8th chapter, basically environmental concept, and we already discussed environmental concept in the world politics, that what kind of the environmental issues we have, it is basically related to water, natural forest, ozone degradation, what is the problem with the ozone, coastal pollution, everything we discussed. We already discussed that there are few conference happened in the world related to that the generation with his earth's meeting, and also we discuss about the Kyoto protocol. We also discuss the protection of the global commons, that few things like environment and Antarctica, oceans, these are the common things which is necessary to save by all the people, because if one country will pollute the environment, doesn't meant to be the other will not have the effect, because we are sharing common environment, so everyone will face the problem with that. And also discuss common but the different responsibility. It is very important topic. Many time there was a question related to that in CBSE, so you basically supposed to read this very carefully, that what was the idea of the north and south country, that why north country was saying that why north country was supporting the environmental development, south country was not supporting the development, and you supposed to discuss all thing. Next we also discussed common but different responsibilities. This is also important question, that common and different responsibility is kind of also Kyoto protocol we discussed in that time period. And the idea of common and different responsibility was that north country, like a developed country, create a major immense of the pollution, so that's why they have the more responsibility, and south country is just started the developed, because mid of the 20th century they get the freedom, and after freedom they started the development or industrialization. That's why they don't have that much role in pollution, creating pollution in the environment. So that's why developed country have the responsibility of that. Common property resources, we discuss that whatever the common things, a group of people will share the property known as the common property. And also we discuss the Indian stand of the environmental issues, that what is the Indian stand. India supported the Kyoto protocol, also India is supporting every kind of the international supporting every kind of international organization. Also India took for certain step like national auto fuel policy, energy conservation. So we discuss these things. Also we discuss that all over the world for the environment there are many movements led by the people. It's not the government who grabbed the it was not the government who grabbed the point of view of the people towards the environment. It was people who start protesting and grab an attention of all the world on the issue of the environment. So also today we are going to discuss resource of geopolitics. See, resource in geopolitics, what is the idea? The idea is explaining that how a resource was how a resource and geo resources were playing a role in the politics. Why who gets that what man win. The first line is telling that who gets what, when, and where. हु गेट्स मीन्स किसको मिल रहा है, वट क्या मिल रहा है, वैन कब, वेयर कहाँ, हाउ, ये बहुत नेसेसरी है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नो वन इज़ कोई भी जो कंट्री है, नो वन इज़ नॉट हैविंग सफिशिएंट रिसोर्स टू डेवलप द कंट्री. सफिशिएंट नहीं कर सका, ऑल द रिसोर्स, नो वन हैव द ऑल द रिसोर्स टू डेवलप द कंट्री. कि किसी भी कंट्री के पास ऐसे नहीं है कि एक ही कंट्री के पास सभी के सभी रिसोर्स हो, और वो उन रिसोर्स के ज़रिए क्या कर सकता है, सभी के जो मतलब रिसोर्स के ज़रिए ही वो उनको क्या मतलब रिसोर्स के जरिए अपनी डेवलपमेंट कर सकता है. सॉरी आई एम लिटिल कंफ्यूज. ओके, फर्स्ट चीज़ है कि सभी कंट्रीज़ के पास. सेकंड, की मीन्स एंड मोटिव द ग्लोबल यूरोपियन पावर. कि ग्लोबल यूरोपियन पावर के की मीन्स और मोटिव्स अगर हम देखें तो वो क्या था. बेसिकली कॉलोनियल जो टाइम पीरियड था, आपको पता होगा कि कॉलोनियल सपोज टू बी मीन्स टू कंट्रोल अनदर कंट्री एंड यूज़ द रिसोर्स ऑफ दैट कंट्री फॉर द पर्सनल डेवलपमेंट. की कॉलोनाइजेशन के दौरान क्या किया जाता था कि कोई भी जो पर्टिकुलर मदर कंट्री होती थी वो दूसरे कंट्री को अपने कंट्रोल में कर लेती थी,
और उस कंट्री को कंट्रोल करके उसके रिसोर्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करती थी। तो यही की मोटिव था कहीं ना कहीं उस टाइम के उसका कॉलोनियल डोमिनेशन का। और इसी कॉलोनाइजेशन ने कहीं ना कहीं इंपीरियलिज्म को जन्म दिया। इंपीरियलिज्म क्या था कि बहुत सारी कॉलोनीज़ को अपने कंट्रोल में रखना। रिसोर्स हैड बीन डोमिनेटेड बाय द रिलेशनशिप ऑफ द ट्रेड एंड वॉर पावर। तो इस तरह से जो ये रिसोर्स है बहुत बार डोमिनेट किए गए हैं। किस तरह से इसने रिसोर्स ने ही डोमिनेट किया, किन चीज़ों को, वॉर को, ट्रेड रिलेशनशिप्स को। क्योंकि देखिए किस लिए हम ट्रेड रिलेशनशिप रखते हैं किसी कंट्री के साथ, रिसोर्स के लिए। बहुत सारे रिसोर्स हो सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में टिम्बर्स के लिए भी किया, क्लोथ के लिए किया। ब्रिटेन का हमारे साथ जो था बेसिकली क्लोथ का था। लेकिन अगर आपको 9th क्लास की याद हो तो कहीं ना कहीं टिम्बर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ट्रेड के टाइम पीरियड पे, जिसके लिए जावा वगैरह को कंट्रोल किया गया था। इवन इंडिया से भी बहुत सारी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वगैरह स्टार्ट की गई थी। तो कहीं ना कहीं हर तरीके का रिसोर्स था, ऐसा नहीं था कि रॉ मटेरियल नहीं चाहिए था या फिर मार्केट नहीं चाहिए थी। मार्केट भी एक रिसोर्स ही होती है सेलिंग के लिए। तो हर तरीके के रिसोर्स के लिए कहीं ना कहीं जो है एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंट्रोल किया जाता था। उसका बेसिक रोल क्या था, सी पावर। क्योंकि पहले ब्रिटेन के हाथ में सारी सी पावर थी, तो ब्रिटेन ने ट्रेड के ऊपर कंट्रोल कर रखा था, सबसे ज़्यादा कॉलोनीज वगैरह एस्टैब्लिश कर रखी थी। लिटरली वो पावर स्किप हो गई और अब वो सी पावर किसके पास है बेसिकली, ये आपको पता है। मुझे भी कमेंट में लिख के बताइए कि किसके पास है वो सी पावर, क्योंकि ऑलरेडी जो पीछे चैप्टर्स हैं उनमें हमने डिस्कस कर चुके हैं। मेथड ऑफ द श्योरिंग द स्टेडी फ्लो रिसोर्स ऑफ मिलिट्री, कि बहुत सारे ऐसे मेथड थे जिसके जरिए रिसोर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। जैसे मिलिट्री के जरिए कंट्रोल करके, स्टॉक पिलिंग्स के जरिए, मतलब स्टॉक्स अपने पास रख के, फ्रेंडली गवर्नमेंट रिलेशनशिप बना के, एमएनसीज के जरिए कि वहाँ पर एमएनसी वगैरह एस्टैब्लिश करके और वहाँ के रिसोर्स को अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया। जैसे चाइना के अंदर जो एमएनसी है उनकी डेवलपमेंट इसी वजह से ज़्यादा हुई थी, क्योंकि चाइना के अंदर क्या था कि आपको जो लेबर है चाइना के अंदर वो बहुत चीप रेट पे मिल जाती है। इसलिए बहुत सारी एमएनसी चाइना में हुई ताकि वहाँ के जो रिसोर्स है यानी ह्यूमन रिसोर्स उसको इस्तेमाल किया जा सके और वो उसको प्रॉफिट ले सके। ठीक है, तो जियोपॉलिटिक्स हमें क्या समझाती है कि कोई भी कंट्री, सिंगल कंट्री ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो अपने ही रिसोर्सेज से सर्वाइव कर सके। हर कंट्री को रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है और यही जो है यूरोपियन कंट्री का मोटिव बना कि उन्होंने एक टाइम पीरियड में बहुत सारे कंट्रीज़ को अपने अंडर करके उन रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से सी पावर्स वगैरह मर्ज हुई, मिलिट्री वगैरह को यूज़ किया गया, फ्रेंडली रिलेशनशिप वगैरह बनाई गई। बहुत सारे ऐसे तरीके थे जिनके ज़रिए कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इन रिसोर्सेज पे हमेशा बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। 2 रिसोर्सेज पे कॉन्फ्लिक्ट हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं टुडे। वो है एक तो ऑयल, कि ऑयल क्या है, एक पोर्टेबल एंड इंडिसेबल फ्यूल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बहुत सारी चीज़ों में। और वेल्थ विद ऑयल, की ऑयल जो है उससे वेल्थ भी क्रिएट की जा सकती है, क्योंकि जो ऑयल है उसको सेल करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो पैसे इकोनॉमिकल उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इकोनॉमिकल उसके लिए इम्पोर्टेंट ऑयल। इसके अलावा जो ऑयल है वो कहीं ना कहीं सॉरी ये बोस लिख दिया है मैंने गलती से, ये बोस नहीं आएगा, दैट सपोज टू बी वॉर। ठीक है, वॉर, कि बहुत सारी वॉर भी हुई है ऑयल की वजह से। आपको याद हो हम चैप्टर नंबर या उसमें यूएस हेजमनी में हम पढ़ते हैं कि यूएस ने कैसे इराक के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसका रीज़न उसने बेसिकली मैसिव ह्यूमन डेवलपमेंट के वेपन्स बताए थे, लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि वो उसके ऑयल के रिसोर्स को कंट्रोल करना चाहता था। तो ऑयल की वजह से बहुत सारी वॉर्स भी होती रही हैं। जो गल्फ़ है उसके पास 30% ऑयल है। सऊदी अरेबिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद इराक के पास जो है 2nd नंबर पर ऑयल है। तो ऑयल एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जिसके जो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव के लिए भी नेसेसरी है, एज वेल एज किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सर्टेन ही कंट्री है जिनके पास ऑयल के रिसोर्सेज हैं। अब उन्हीं कंट्री को कंट्रोल करने के लिए वॉर भी होती है, उन कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाने की भी कोशिश की जाती है, चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो, जापान हो, इंडिया हो, सभी को ऑयल की ज़रूरत है। और इस पेट्रोलियम के और ये क्या है कि एक फिक्स काइंड ऑफ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑयल हमारे पास अवेलेबल है और कितना भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक इस तरह का रिसोर्स है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सेकंड जो रिसोर्स हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो है हमारा कहीं ना कहीं वाटर स्कार्सिटी, कि वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। धीरे धीरे जो ड्रिंकिंग वाटर है वो हमारे पास कम हो रहा है, और ड्रिंकिंग वाटर कम होने की वजह से डिसएग्रीमेंट ओवर द शेड ऑफ द वाटर, की वाटर जो शेयर करने की बातें आती हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, चाहे वो किसी कंट्री के बीच में हो या कंट्री के इंटरनल स्टेट के बीच में हो। तो वाटर वॉर्स होती हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि मान लीजिए अगर कोई रिवर है वो एक स्टेट से या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रही है, तो जिस कंट्री से वो फ्लो कर रही है, जहाँ से वो रिवर आ रही है, तो वो पहले जहाँ से वो रिवर जा रही है
वो लोग उस पर डैम वगैरह बना के उसके वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। बचा हुआ पानी ही जो है वो अगले स्टेट तक जाएगा। इसकी वजह से जो दूसरा स्टेट है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और वो इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि इस स्टेट को बाउंड किया जाए, वो समझे कि वो इतना ज़्यादा पानी अपने स्टेट में ना रखे कि हमारे स्टेट तक पानी ही ना पहुँच पाए। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं और बहुत सारे इंडिया के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है। जब हम नेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडिया में वाटर के लेकर कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। ठीक है, ओके। सो इजराइल एंड सीरिया जो है इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुए भी हैं और ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो थर्ड वॉर होगी वो कहीं ना कहीं वाटर से रिलेटेड ही होगी। तो वाटर जो है हमारा एक मेजर प्रॉब्लम के रूप में एमर्ज होके आ रहा है। हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्लास इसकी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम इंडिजिनियस पीपल के बारे में पढ़ेंगे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।